Welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we'll see again isostacy part, which is your part 2. So in part 1 we have discussed some theory part and the different kind of hypothesis given by Airy, Pratt and Heskelin. Okay. So and also we have seen the isoprestic level, okay, or you can say zone of uniform pressure, zone of equal pressure, whatever you can say. So today we'll see the formula. So Airy has given two formula to define the root. What is the root? We have discussed in the last class. Just आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ. If this is the means sea level और this is the surface, इसके ऊपर एक mountain है. अगर ये mountain है, you have different kind of mountain. Okay, so ये mountain को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं. So that आपको comparison पता चलेगा. तो ये इसका height है. So इसको अगर मैं लिखता हूँ H2, this is your H1 and दिस इज योर H3. सो अगेन इसका रूट भी उसी तरह रहेगा, तो इस जितना ऊपर हाइट रहेगा उतना नीचे रूट भी, यू कैन गेट द रूट. ओके, राइट. सो दिस इज द R1, R2 एंड R3. ये सब चीज़ हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में. सो उसी को लेके कुछ फॉर्मूला डिराइव हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास हाइट है, हाउ मतलब रूट तो है, यू ऑल नो कि आपके पास रूट है माउंटेन का, बट हाउ यू कैन डिराइव दैट रूट और फ्रॉम दैट हाइट. हाइट और रूट के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब आप अगर मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं तो आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा. वो फार्मूला क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के लिए आपको रूट के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा. अगेन ओशनिक क्रस्ट के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. So here the expressions R stand for the root of the mountain. Again PC means this is the rho, and ये इसको आप रो कंसिडर कर लीजिए. रो C, again रो and रो. C for crust, density of the crust, density of the mantle and density of the water. Again H is the height, you know, and D is the depth of the water. This is the depth. अगर ओशनिक क्रस्ट में देखते हो वाटर का डेप्थ क्या है, ये सब चीज हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और ये नोटेशन है, यू हैव टू यूज. सो ही हैज गिवन टू फार्मूला, एंड ये फार्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो रूट. तो ये फार्मूला आया कहाँ से हम देखते हैं. सो हम सबको पता है, एंड यू ऑल नो, यू हैव द जोन ऑफ कंपनसेशन. जोन ऑफ कंपनसेशन मीन्स द जोन वेयर द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल रीजन. सो दिस इज द जोन ऑफ कंपनसेशन. सो अगर ये जोन में देखो, ये लाइन के नीचे जो जोन है, जो सी डैश मतलब सी एंड सी डैश लाइन है, below that you will get the equal pressure. So from this line you have the equal pressure zone. So if in that line you see, so यहाँ पे आपको जो pressure मिलेगा in this region, again in this region you will get the same pressure. So if I am taking point A and point B, so can I write pressure at point A is equal to pressure at point B, and you all know pressure is equal to nothing but rho gh, which we have seen in the interior of the earth part. So can I write PA is equal to P, B pressure है ये. So again pressure is equal to rho gh. So at point A I can write density of the crust, because this is only the crust, density of the crust, and G, and H के जगह height के जगह I can write this is total height, and total height is including H1 T and R1. This is R1, so I can write H1 plus T plus R1 is equal to your प्रेशर एट बी. प्रेशर एट बी, व्हाट इज योर प्रेशर एट बी. बी पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर क्या है, आई कैन इफ यू सी you have different, this is the crust and this is the mantle, so density of the mantle will be different, so you have to add this pressure and this pressure. So can I write density of the crust into G into T plus density of the mantle into G into this is your thickness R1. okay, ये जो है ये R1 है. सो ऐसे मैं लिख सकता हूँ. अगेन जी को हम कैंसिल कर देते हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट्स. सो कैन आई राइट डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू H1 प्लस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट T प्लस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट R1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट T प्लस डेंसिटी ऑफ द मेंटल एंड R1. सो इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करते हो, डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट T देखो यहाँ पे भी है, एंड दिस इज अगेन द अनदर साइड ऑफ द इक्वल साइन. सो दिस विल बी कैंसल. डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू हाइट प्लस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू R1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मेंटल R1. सो R1 को अगर एक साइड पे आप ले जाते हो एंड कॉमन ले लेते हो R1 को, सो डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू हाइट इज इक्वल टू, कैन आई राइट R1 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ द मेंटल माइनस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट. सो R1 is nothing but your density of the crust divided by density of the mantle minus density of the crust into H1.
So this is the first formula given by Airy. So I think you have written. So again we'll derive the second formula. Same ऐसे ही दो point लेना है and just we are playing with the density and the height because G will be the same for all the regions which is your specific gravity. Okay, so let me erase, then we'll again see. So यहाँ पे भी मैं दो पॉइंट लूंगा बट दिस इज बिलो द ओशनिक क्रस्ट बिकॉज वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ओशनिक क्रस्ट. सो इफ यू सी प्रॉपरली यू हैव द ओशनिक क्रस्ट इन वन रीजन ओनली जो कि यहाँ पे है. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज माई पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज माई पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी. So can I write again point pressure at point A is equal to pressure at point B. So again मुझे क्या लिखना है, पॉइंट ए के लिए प्रेशर कितना रहेगा एंड पॉइंट बी के लिए प्रेशर कितना रहेगा. तो ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं पॉइंट बी का, देन पॉइंट ए के लिए जाएंगे. पॉइंट बी पे प्रेशर क्या रहेगा, इफ़ यू सी डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट जी एंड ये जो हाइट है ये है टी. दिस इज एट प्रेशर एट पॉइंट बी. सो इसको बस रिवर्स कर दीजिए, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए. सो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या रहेगा, इफ़ यू सी इसके के लिए कुछ अलग प्रेशर लगेगा, इसके के लिए कुछ अलग प्रेशर लगेगा एंड इससे फॉर दिस रीजन द प्रेशर विल बी डिफरेंट एंड इफ यू ऐड बोथ थ्री प्रेशर देन यू विल गेट द एक्यूरेट प्रेशर एट पॉइंट ए. सो कैन आई राइट, प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या था, रो जी एच डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी इन द हाइट ऑफ द वाटर इज और डेप्थ ऑफ द वाटर इज डी प्लस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट एंड ये थिकनेस हमें पता नहीं है. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट, टोटल थिकनेस यू नो इज टी एंड आउट ऑफ टी यहाँ पर इतना आपको पता है विच इज योर आर जीरो एंड दिस इज योर डी. सो आई कैन कैलकुलेट दिस वन ना. अगर इफ आई विल माइनस डी एंड आर जीरो फ्रॉम टी देन ऑब्वियसली आई विल गेट, सो टी माइनस डी माइनस आर जीरो एंड यू हैव जी. ओके, यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर रो जी एच अगेन डेंसिटी ऑफ द मेंटल एंड जी. ओके, डेंसिटी ऑफ द मेंटल जी एंड आर जीरो. So you can write density of the crust एंड टी जी सब जगह से मैं रिमूव कर रहा हूँ, आज जी इज द कॉमन. ओके, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू डी प्लस डेंसिटी ऑफ द crust into T minus density of the crust into D minus density of the crust into R0 plus density of the mantle into R0. So I can write this, but again if you see, अगर इसको आप अच्छे से देखते हो ये जो चीज़ है यहाँ पर भी सेम है, प्लस दोनों साइन है एंड दिस इज इन द अपोजिट साइड. ये मतलब इक्वल साइन का इधर है एंड ये इक्वल साइन का उधर. सो वी कैन कैंसिल दिस टू. सो कैन आई राइट डी प्लस ये ओके यहाँ पे ये क्या है माइनस. ओके, सो फर्स्ट सिंप्लीफाई इसको, बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आगे नहीं जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू डी, ये कंप्लीट माइनस डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इंटू आर जीरो प्लस डेंसिटी ऑफ द मेंटल आर जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये साइड जीरो हो गया, हम ये ऐसा लिख सकते हैं. सो कैन आई राइट डेंसिटी ऑफ द मेंटल आर जीरो minus density of the crust R0 is equal to density of the crust D minus density of the water D. obviously इसको अगर मैं उस साइड ले जाता हूँ तो बस साइन चेंज होगा because this is zero. So from that if I will take R0 common, rho m minus rho c is equal to D को common अगर हम लेते हैं rho c minus rho w. First thing why I am doing this, because if you forgot the formula sometime maybe आप याद रख ले तो it's better and it's good, but sometimes if you forgot then you can calculate in the exam in this way. So I am saying, and this is not very hard, just you are playing with the density and thickness, right? So you can write R0 is equal to density of the crust minus density of the water divided by density of the mantle minus density of the crust into D. D यहाँ पे है. So this is again your second formula given by the Airy. Okay, now I think it is clear. But if you remember in
throughout this region we have taken only, even this part is oceanic crust. Again another part, this is your continental, if you see not continental crust, sorry, this is your continental crust and this is your oceanic crust. So basically you know that continental crust and oceanic crust have different densities, but here we have taken the density as rho c same. Why? Because it is also given, it is itself given by एरी that उनका थ्योरी में ही हमने देखा था कि डेंसिटी सेम रहेगा, as he have suggested, he has suggested in his theory कि density is always same but thickness will vary. So according to his theory, we have his theory, this formula is given. Okay, so यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वी नो द डेंसिटी ऑफ द crust is different in different region. Like in continental crust density will be something different, and we have seen in the last also, last में हमने देखा था जो कि प्राट के द्वारा करेक्ट किया गया था कि क्रस्ट और मेंटल का मतलब कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट का भी डेंसिटी डिफरेंट रहता है, बट वी कैन डू एनीथिंग, सो यू हैव टू कंसीडर दिस. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्राट फॉर्मूला, यहाँ पे हम वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर नहीं सकते, ये चीज़ ऑब्वियसली मॉडल में है. इफ़ यू सी डिफरेंट ब्लॉक, देखो हर ब्लॉक का डेंसिटी भी अलग है, रो वन रो टू रो सी. ओके, हर चीज़ का डेंसिटी अलग है. रो जीरो मीन्स दिस इज द ओशनिक वाटर, सो दिस इज ओशनिक क्रस्ट, सो डेंसिटी ऑफ द ओशन, डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट. तो यहाँ पे एक H1 हाइट है, तो यहाँ पे डेंसिटी रो वन लिया गया, डेंसिटी रो टू लिया गया, एंड रो एम इज द डेंसिटी ऑफ द मेंटल. सो यहाँ पे अगेन इन सेम वे वी हैव टू डू. तो यहाँ पे करना क्या है, वहाँ पे जैसे जो चीज़ हमने किया था वही चीज़ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू द रिपीट. लाइक दिस इज द व्हाट स्टैंड फॉर, जो ये जो रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर, हाइट, डेप्थ, एंड दिस इज द डी. वी आर टेकिंग जस्ट रिप्लेसिंग द टी बाय डी. ओके, वहाँ पे टी था, यहाँ पर हम ले रहे हैं डी. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, अगेन वी हैव टू टेक सम पॉइंट्स. सपोज मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ and I will derive those two formula. Suppose this point is A, B, C, D and E. So again you all know pressure is equal to rho gh. We will use this concept only, and G is same in all regions, so we can cancel. Just we are playing with the rho and G. Okay. So can I write pressure at point A is equal to pressure at point C? Means यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे भी सेम प्रेशर रहेगा, because this is the C and C dash line. Below this line we know the pressure will uniform. So can I write? So G को मैं स्टार्टिंग, we know pressure is equal to rho GH. So A पॉइंट पे क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट. G को मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि बाद में फिर एक स्टेप में हम कैंसिल ही करेंगे, और लिख लेते हैं. एंड हाइट के जगह पे आई कैन राइट D इज इक्वल टू व्हाट विल बी द प्रेशर हियर. सो अगेन रो वन, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, क्योंकि एरी ने बताया था कि डिफरेंट रीजन में यू हैव द डिफरेंट डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑल्सो. द ब्लॉक विच हैव हायर थिकनेस विल शो लो डेंसिटी. हमको ये चीज़ पता, इनवर्स रिलेशन था. सो ठीक है. सो रो वन, आई कैन राइट रो वन. अगेन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ले लिया, एंड थिकनेस की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, H1 एंड डी. ऑब्वियसली H1 प्लस, सॉरी H1 प्लस डी. सो जी को कैंसिल करते हैं. सो कमिंग टू द डायरेक्ट, रो सी इज इक्वल टू डी इंटू रो वन H1 प्लस रो वन डी. सो इफ यू सी, सो कैन आई राइट रो सी डी माइनस रो वन डी इज इक्वल टू रो वन H1. तो डी को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, रो सी माइनस रो वन इज इक्वल टू रो वन H1. सो यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, जो आपको अभी निकालना है यू कैन डू. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1, और हाइट को मैं लिख सकता हूँ, हाइट इज इक्वल टू रो सी माइनस रो वन डिवाइडेड बाई रो वन राइट इंटू डी. ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना. व्हाई आई हैव चेंज दिस, ये थोड़ा सा याद रखने में आपको में भी हार्ड हो सकता है. अगर नहीं भी होता आप ये भी याद रख सकते हो, कुछ चेंज नहीं है, बट सेम है. मैं यहाँ पर आपको क्या क्या एच एंड डी का रिलेशन आपको निकाल के मैं दे दिया. ठीक है. सो रो वन रो सी क्या, रो सी क्रस्ट, और रो वन जो माउंटेन एरिया में आपको वो गिवन रहेगा. ठीक है, मतलब क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे.
So ये again this is a type of derivation which is using in the elevation H1 और continental area, but for oceanic area वहाँ पर भी हम करेंगे. So for oceanic area again हमें derive करना है, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. सो लेट मी इरेज एंड अगेन आई विल डिराइव द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला डिराइव करके आज रुक जाएंगे. एंड अनदर सॉरी ये इसको रखते हैं अनदर पार्ट और एक वीडियो में जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. सो दैट आपको एक क्लियर मतलब आइसोस्टेसिक के बारे में कुछ भी अगर क्वेश्चन है फ्रॉम थ्योरी टू द फॉर्मूला अप टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ भी आपसे ना छूटे. ओके, सो आफ्टर दिस लेक्चर we'll see formulas, not formulas, we will see previous year question in the next video. So can I write pressure at point A is equal to pressure at point E? Obviously यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा यहाँ पर भी सेम प्रेशर रहेगा. दिस इज द लाइन और जोन ऑफ कंपनसेशन. बट हियर वी आर टेकिंग अ केस, और यू कैन राइट ऑल्सो प्रेशर एट डी. ए का जगह डी पे ले लेते हैं, कंपेरिजन में ये पास में है दोनों तो इजी लगेगा. सो प्रेशर एट डी, व्हाट आई कैन राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. प्रेशर एट डी क्या लिखना है मुझे. अगेन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. डी के प्लेस पे हाइट कितना है ये पॉइंट पे, ऑब्वियसली डी हाइट है ना. सो ठीक है, रो सी जी एंड हाइट इज डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमें दो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जैसे एरी में हमने ऐड किया था क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रहा है. सो डेंसिटी ऑफ द वाटर जी एंड डी प्लस डेंसिटी ऑफ द ओशनिक क्रस्ट जी एंड this height we can write d minus d. Okay, ये हमें पता है टोटल एंड this is d, so obviously if you minus then you will get this thickness. Okay, so g को again मैं कैंसिल करता हूँ g from all the sides because it has equal value and ये सब तरफ है तो we can cancel out. Rho c d is equal to rho w small d plus rho 0. ओके, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा रहा हूँ. यू कैन गो नेक्स्ट स्टेप माइनस रो जीरो डी. ओके, सो कैन आई राइट, यहाँ पर से मैं कुछ अगर आप यहाँ से कुछ माइनस कर सकते हो क्या, एक बार आप चेक कर लो. कुछ माइनस नहीं हो रहा है. सो कैन आई राइट रो सी डी माइनस रो जीरो डी. इतना तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर अच्छा ये है, ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, ये नहीं है. ओके, इज इक्वल टू ये तो हम लिख सकते हैं ना, इसको जस्ट हम ऑपोजिट साइड लेके आ गए. सो रो डब्ल्यू डी माइनस रो जीरो डी, जस्ट कैपिटल एंड स्मॉल डी को हम एक साइड पे कर लिए. सो डी को अगर मैं कॉमन लेता हूँ रो सी माइनस रो जीरो और ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी. एंड अगेन डी को अगर मैं कॉमन लेता हूँ रो डब्ल्यू माइनस रो जीरो. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वट एवर यू वांट डी, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डी इज इक्वल टू रो सी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू माइनस रो जीरो इंटू capital D. Capital D is nothing but thickness of the crust and small d is the depth of the water. So from this formula you can calculate. Okay, whatever they want you can easily calculate. ओके, अब वो कुछ नहीं पूछेंगे आपको, या तो वाटर का डेप्थ पूछेंगे या फिर डेप्थ ऑफ द माउंटेन पूछेंगे, ऐसे ही वो पूछेंगे. ओके, सो दीज आर द टू फार्मूला. ओके, द फार्मूला के बाद ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बता के आज का हम यहीं पे एंड कर लेते हैं. सो अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय वैन एंड मीन्स, जो कि इलास्टिक प्लेट मॉडल एक लेके वी हैव सीन द कंपनसेशन. ओके, कंपनसेशन डेप्थ ऑफ कंपनसेशन, और यू कैन से जोन ऑफ कंपनसेशन और जोन ऑफ इक्वल प्रेशर, तो हर माउंटेन के नीचे रहता है. सो व्हाट they have given that sometimes you will not get perfect, sometimes not sometimes, many times you will get not perfect compensation. it may under or over compensation. तो under compensation क्या है, over compensation क्या है, just एक चांस सपोज दिस इज अ माउंटेन. ठीक है, ये माउंटेन का एक्चुअल थिकनेस है. सो ये क्या है, इन्फर्ड, ये डैश डैश लाइन है, दिस इज इन्फर्ड रूट. जस्ट दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग द रूट एंड द रियल रूट. तो एक्चुअली अगर ये माउंटेन ऐसा है
तो रियल रूट यहाँ पे होना चाहिए एंड इन्फर रूट ऑल्सो कोइंसाइड। अब इन्फर्ड रूट और रियल रूट क्या है, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। रियल रूट मीन्स ये रियल रूट है, इन्फर्ड रूट मतलब ये चेंज हो सकता है। हाउ इट विल चेंज, मैं बताता हूँ। सपोज अभी ये एक्चुअल साइज है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो ये कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। सो सपोज ये एक्चुअल रूट में क्या मतलब, एक्चुअल माउंटेन है तो यहाँ पर रूट है, ऑब्वियसली यू नो, मतलब ये वर्टिकल एक एडजस्टमेंट है। आज अगर हाइट बढ़ता है तो वर्टिकल एडजस्टमेंट भी बढ़ेगा, राइट। हाइट कमता है तो वर्टिकल, क्योंकि आइसोस्टेसी इज नथिंग बट अ वर्टिकल एडजस्टमेंट एंड ग्रेविटेशनल बैलेंस वी ऑल नो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज ये अगर यहाँ इसका हाइट कम गया, हाइट कैसे कमेगा, अगर वेदर इरोजन होकर इसका हाइट कम गया, तो हमें क्या पता है इसका रूट भी ऊपर आ जाएगा। सो ये देखिए, इसका इन्फर्ट जो रूट यहाँ पर रहेगा, बट रियल रूट कहाँ पर दिखा है, यहाँ पे है। एक्चुअली में ये स्टार्टिंग पॉइंट में यहीं पे था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में इट वाज इन इट्स रियल पोजीशन, बट ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ये शिफ्ट हो, मतलब रियल रूट तो यहाँ पे है बट इन्फर्ट रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस कहाँ पे आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ओवर कंपनसेशन। मतलब रियल रूट एक्चुअल जहाँ रहना चाहिए उससे नीचे है, एक्चुअल ये यहाँ पर रहना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका हाइट कम है। इसका हाइट ज़्यादा है तो ये यहाँ पे था, बट विथ टाइम इसका इरोजन हो जाता है। तो एक्चुअल जो रूट है वो सेम प्लेस पे है आज का, मतलब बट इसको रियलिटी में यहाँ पे डैश 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 लाइन पे रहना चाहिए। सो ये ओवर मतलब ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओवर कंपनसेशन। इन अनदर क्या होगा, अनदर केस, अगर सपोज यहाँ पे और भी ज़्यादा माउंटेन का ग्रोथ हुआ या फिर यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो माउंटेन का हाइट तो बढ़ गया ना, एज इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट भी इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं, नीचे रूट इंक्रीज होना चाहिए, रूट इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाना चाहिए। बट अगेन ये अपना रियल पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलते हैं अंडर, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर में मतलब कम में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंडर कंपनसेशन। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, अगेन विल एक्सप्लेन इट। सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज इनफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।